Hello guys, welcome all of you to our class of English where we will learn how to write a report. So in report writing, we will learn that it's an written account of something, what we have observed, what we have heard, done, or what we have investigated. So report writing is a written document. Okay, so here we will just analyze what we have observed, what we have heard, what we have done or investigated, and then we write about it. So report writing, I earlier told you that uh, it is the long writing section where you have to write a long composition. It is also of 10 marks. In our earlier section also we did a long writing section where we did article writing, speech writing, debate writing, and now this is one of the long writing skill, that is the report writing. These four are the long writing skill. Okay, each one carry 10 marks, but in exam you will get the two question. ठीक है, one must be about the article writing, and for the another question you will get the choice between the among the report writing, speech writing, or debate writing. Okay, so this is our last long topic which we will do now. So in this way, report writing is a written account where we observe something, where we heard something, where we do something, and where we investigate something about the event that has happened in the past. यानी कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में. ठीक है, सो द इवेंट्स विच आर गिवन, द सिचुएशन विच इज़ गिवन इन आर question, we have to present in a very systematic way. We have to organize all the things in a very skillful way. So while organizing all these things in a systematic way, we should present the facts. Okay, we should also present our report about the events that has already taken place. That's why we have to use which tense? Past tense for the report writing. रिपोर्ट्स आर यूज एज ए फॉर्म ऑफ रिटन असेसमेंट, यानी कि यहाँ पे हम जजमेंट भी करते हैं, असेसमेंट भी करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमने अपनी रीडिंग से, अपने रिसर्च करने से, अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा है. देयर ऑल्सो वी लर्न द experience and also we acquire a very important skill, that is to use in our work culture. What are the skills? A skill of analyzing, skill of relating the things with the past skill of presenting the things in a very systematic way. Okay, so these things we have to inculcate in our workplace, in our work culture, so that very effective way we can present our writing things. Okay, so in this way in report writing we do the things what, क्या करते हैं हम रिटर्न में प्रेजेंट करते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन को, हमारी इन्वेस्टिगेशन को, जितना भी हमने मटेरियल कलेक्ट किया है उसको बड़े ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में. ठीक है, उसको फैक्ट के साथ हम प्रेजेंट करेंगे जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं. जैसे कि रिपोर्ट हमें नाम ही बताता है कि हाँ ये पहले हो जाने वाली चीज़ों के लिए होता है. जैसे अगर आपका अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, हम उसके बारे में बोलते हैं कि हमें चाहिए बच्चों की रिपोर्ट कि उन्होंने क्या क्या किया है, यानी कि जो काम हो चुका है उसके बारे में ही रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं. तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि हमने पास्ट के लिए रिपोर्ट लिखनी होती है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नोटिस एंड रिपोर्ट. ठीक है, हाँ दोनों में ही इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन नोटिस में हम इंफॉर्मेशन देते हैं द इवेंट दैट हैज़ टू कम. ठीक है, जो इवेंट अभी होने वाला है. And in report we present the things that has happened in the past, जो past में हो चुकी है उनके लिए. So there is the big difference between the things to be happened and the things has happened. Okay, for the things to be happened, for notice writing we use the present tense, and for the things that has happened means for the report writing we use past tense. This is one of the notable things for you. So in this way in report writing we have to do
बेसिकली द रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड फॉर द मैगजीन रिपोर्ट्स, यानी कि फॉर द टू पर्पज द रिपोर्ट्स हैज़ बिन रिटन। न्यूज़पेपर रिपोर्ट वो होती है जो हम न्यूज़पेपर में पब्लिशिंग के लिए भेजते हैं, और मैगजीन में जनरली वो रिपोर्ट्स आती हैं जो हम अपने स्कूल या मैगजीन के लिए लिखते हैं। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्ज़ाम इन आर राइटिंग सेक्शन अंडर द सेक्शन बी, इट केम, ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर which is of 10 marks. So generally there is a choice between these things, between the debate writing, article writing, speech writing and report writing. So in these 4 topics article writing is must, and there is a choice among the rest of 3, means debate writing, speech writing and report writing. So you can choose according to your convenience, and also you have to choose what has been given in the examination. So as it is of 10 marks, so you have to write for the word limit, which is 150 to 200. Minimum is 150 and the maximum is 200. Okay, so there is a mark division like all the 10 mark questions, like the all other long writing skill. 1 mark for the format, 4 marks for the content and 5 marks for the expression. Then the expression, of course, you have to pay attention towards grammatical accuracy, appropriate words and spellings. Of course, you also have to pay attention about the coherence and the relevance of the ideas and style. So while you are writing a report, you must pay attention towards the following points. It means, first of all, adherence to the specification of the report brief. It means हमने रिपोर्ट के लिए जो भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी है वो कैसी होनी चाहिए, ब्रीफ में ही देनी है, ठीक है। अडेरेंस का मतलब होता है टू बी स्टिक टू, उसके साथ हमने बिल्कुल रिजिड रहना है, बिल्कुल लिमिटेड रहना है, ठीक है, कि हम हाँ ये काम ज़रूर करेंगे, ये अडेरेंस का मतलब होता है। सो बच्चों, दिस वर्ड इज़ वन ऑफ द न्यू वर्ड फॉर यू एंड यू हैव टू इनकलकेट द हैबिट टू यूज़ दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स अगेन एंड अगेन इन योर राइटिंग स्किल, so that you can acquire, you can enhance your vocabulary much and more, ठीक है। so adherence is a new word which means to be stick to that. stick का मतलब होता है उसके साथ चिपके रहना, उस बात को हमने ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सही बात है, वट एवर बी द इन्फॉर्मेशन वी हैव विद अस, वी हैव टू एनालाइज दोज इन्फॉर्मेशन fully. Next, what we keep in mind, structuring material in a logical and coherent order. Of course, yes, whatever be the material is with us, we have to present all the things in a very logical way and in a very coherent way. Coherent का मतलब क्या होता है, to relate the words and sentence so that they can give the clear meaning of a topic. Presentation in a consistent manner according to the instructions of the report brief. Of course, we have to present all the things in a consistent manner. Consistent means लगातार, जो consequently रहती है, एक के बाद एक situation चलती रहती है। So इस manner में हमने report writing अपनी करनी है, लेकिन सभी चीज़ों को brief में लिखना है। Do not write so many sentences to present a single view. ओके, लाइक अगर वहाँ पे देर वॉज अ बिग क्राउड, ये हमें लिखना है, तो इसके लिए हम ये नहीं लिख सकते कि आई वॉज देयर एंड आई वॉज देयर विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, सम पर्सन्स वर पुअर, सम वर देयर रिच, सो वी शुड नॉट राइट सो मच देयर, वी हैव टू राइट ओनली कि देयर गैदर्ड अ लार्ज क्राउड, इस तरह से, ओके। So in this way, making appropriate conclusion that is supported by evidence and analysis of the report. ये बहुत अच्छी बात है कि हमने क्या करना है, कंक्लूजन देते हुए क्या करना है, एविडेंस देने हैं, एनालाइज करना है रिपोर्ट को। ऐसे ही नहीं कि किसी भी बात को हमने एज ए कंक्लूजन बना के लिख दिया, बट वी हैव टू स्पॉट इट विद द एविडेंस, विद द फैक्ट। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। बहुत ज़रूरी है फॉर्मेट लिखना हमने, तो फॉर्मेट के लिए हम देख लेते हैं कि फॉर्मेट में क्या होता है। ऑफ कोर्स सबसे पहले हेडिंग ही होती है, द डिस्क्रिप्टिव टाइटल विच इज़ एक्सप्रेसिव ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। तो सबसे पहले एक ऐसा टाइटल हमने देना है जो कि साफ साफ हमें बता दे कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द रिपोर्ट, यानी कि टाइटल देखते ही पता लग जाना चाहिए कि रिपोर्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देन सेकेंड थिंग अबाउट द बाईलाइन, बाईलाइन मीन्स राइटर,
हाँ जी, आर्टिकल राइटिंग में भी हमने किया था हेडिंग देन बायलाइन। तो बायलाइन का मतलब ही होता है कि वी हैव टू राइट द नेम ऑफ राइटर हु इज गोइंग टू राइट दिस कंपोजिशन, हु इज गोइंग टू राइट दिस वन. ओके, and in mostly cases the name has been given in the question, but if it is not given we have to use any fictitious name, any imaginative name, but we should not give our personal detail. ठीक है. So after these two section heading and byline, we have now to start the body of our report. So this one is going to be our first paragraph, opening paragraph हम इसको बोल सकते हैं. Of course we can subdivide this paragraph also. ठीक है, उसको और भी ज़्यादा भागों में हम बांट सकते हैं, लेकिन जो हमारा ओपनिंग पैराग्राफ है उसमें ही वी हैव टू इंक्लूड द 5 W's, यानी कि हमें 5 W का जवाब देना ही पड़ेगा. कौन कौन से? व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, और हु. ओके, किस किस के बारे में? अगर कोई ऑर्गेनाइज करा रहा है, कोई चीफ गेस्ट आ रहा था किसी खास मौके के लिए, जैसे एनुअल फंक्शन के लिए कोई रिपोर्ट लिखनी है, वहाँ पे कोई चीफ गेस्ट बुला गया है, तो ये भी बताना है कि क्या ऑर्गेनाइज कराया, क्यों कराया, कब कराया, कहाँ कराया था, और चीफ गेस्ट कौन होने वाला था. ओके, ये सब हमको इन्फॉर्मेशन देनी है हमारी ओपनिंग में ही. All these we will present in the opening because we have to be the strong enough in the opening so that the viewer can have the view that you have prepared your topic in a very impressive way, in a very laborious way. So account of the event in detail. Next we can write the event that has happened there in a very sequence, ठीक है, in a very sequential and in a very detail. Okay, कि फर्स्ट ये हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये डिस्क्राइब भी करना है और सीक्वेंसिंग को भी हमने ध्यान में रखना है. इट इज़ द मेन पैराग्राफ, क्योंकि हमारा पैराग्राफ ये फर्स्ट है, सो वी हैव टू बी द स्ट्रॉन्ग इनफ. हाँ, ये हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू आर इंफॉर्मेशंस, कितनी सारी हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कितनी सारी हम डिटेल देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्प्लिट ज़रूर कर सकते हैं, बांट सकते हैं अपने इस पैराग्राफ को. ओके, चलिए. सो नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, नेक्स्ट वी राइट अबाउट द कंक्लूजन. ऑफ कोर्स एंडिंग हमने करने हैं किसी भी चीज़ की लॉन्ग राइटिंग स्किल में, चाहे हमारी डिबेट राइटिंग है, चाहे हमारा आर्टिकल राइटिंग है, चाहे हमारी स्पीच राइटिंग और चाहे हमारी रिपोर्ट राइटिंग है, एंडिंग तो हमने कंक्लूजन के साथ ही करनी है. सो वी हैव टू एंड आवर रिपोर्ट बाय गिविंग एक्सक्लूसिव कंक्लूजन. We can also write some quotes because it will also have a very good impact on the checker. ठीक है, अगर हम कोटेशन के साथ उसको कंक्लूड करते हैं, बाकी हम कंक्लूजन में एविडेंस भी दे सकते हैं, फैक्ट्स भी दे सकते हैं, अपने पर्सनल व्यूज़ भी लिख सकते हैं कंक्लूजन में, बिल्कुल, कि हम इस तरीके से सोचते हैं. ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, एक मैगज़ीन रिपोर्ट होती है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है. तो थोड़ा बहुत देखते हैं अगर इनके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क होगा तो, अदरवाइज़ तो लगभग सेम ही होती हैं. तो देखो, सही बात है, दोनों में ही, चाहे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है चाहे वो मैगज़ीन रिपोर्ट है, दोनों में हेडलाइन तो आपको ज़रूर डालनी है. ठीक है, दूसरी बात जो हम सेकंड बात कर रहे थे इसके फॉर्मेट की, उसमें बाय लाइन लिखना होता है. मैगज़ीन में तो नाम दिया होता है, और न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टर होते हैं वो अपना नाम, उनकी डेजिग्नेशन, क्या वो एडिटर लिख रहा है, क्या वो न्यूज़पेपर लिख रहा है, या कौन क्या वो एडिटर लिख रहा है, कोई वो रिपोर्टर लिख रहा है. ठीक है, उसका डेजिग्नेशन देना ज़रूरी है. सेकंड रैंक का है, ठीक है, सेकंड एडिटर है, तो मतलब रैंक के साथ बताना होता है, डेजिग्नेशन ज़रूर बताना होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग में. उसके बाद सीधा अगर हम मैगज़ीन के लिख रहे हैं तो मैगज़ीन में तो सीधी हमारी ओपनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन न्यूज़पेपर में हमने डेट और प्लेस ज़रूर लिखना होता है कि कौन से डेट को किस जगह पे ये हमारी घटना हुई थी. उसके बाद अकाउंट ऑफ द इवेंट, यानी कि न्यूज़पेपर भी हमने ओपनिंग करने डेट और प्लेस लिखने के बाद. ठीक है, उसके बाद तो सब सेम ही है कि ओपनिंग पैराग्राफ भी दोनों में होने हैं, अकाउंट ऑफ द इवेंट भी दोनों में होने हैं कि क्या घटना हुई है, कब हुई है. उसके बाद कंक्लूजन भी हमने देना है. लेकिन न्यूज़पेपर में हमें क्या करना है, एक आध जो हमारे पास विटनेस है, गवाह है, ठीक है, उनके बारे में भी बता देने हैं कि कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ये सब देखा है. तो न्यूज़पेपर में हम थोड़ा सा आंखों देखा हाल ज़्यादा बताते हैं. हाँ, स्कूल मैगज़ीन के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन न्यूज़पेपर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट इट कैन प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर न्यूज़, ऑफ योर रिपोर्ट.
ठीक है। तो सीबीएसई ने हमारे लिए कुछ न कुछ रिपोर्ट राइटिंग में गाइडलाइन भी जारी किए होते हैं, ठीक है। तो उस गाइडलाइन के बारे में वी विल टॉक लेटर। अब आपको सिर्फ इसके बारे में यही करना है, जितने भी हमने फॉर्मेट में आपको इसके पार्ट बताए हैं उसको ध्यान रखना है, ठीक है। और जिस तरह से हमने इसके फॉर्मेट के बारे में जिक्र किया है कि हाँ ओपनिंग पैराग्राफ में ये सब इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में ये सब होना चाहिए, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल गिव यू सम टिप्स अबाउट राइटिंग द रिपोर्ट। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।